سے سبق شروع کرتے ہیں۔ سورۃ النحل آیت نمبر 77 سے مطالعہ ہم نے کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ دیکھیے۔ اور آسمانوں اور زمین کے سارے بھید اللہ کے قبضے میں ہیں، اور قیامت کا معاملہ آنکھ جھپکنے سے زیادہ نہیں ہوگا بلکہ اس سے بھی جلدی۔ یقین رکھو کہ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اور اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حالت میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل پیدا کیے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے بارے میں بتا دیا کہ وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ یعنی وہ جب پیدا ہوا، اس کے پیدا ہونے کے بعد یعنی اس کا علم جو ہے وہ انسان کا کچھ بھی اس کا ذاتی علم نہیں ہے، یعنی پیدائش کے وقت وہ کوئی علم اور ہنر نہیں رکھتا تھا۔ پھر جیسے جیسے ضرورت جس حال میں پہنچی، عمر کے جس حصے میں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ علم اس کو عطا کیا۔ جیسے پیدا ہوتے ہی اس کے وہ جو علم حاصل ہوا وہ بلا واسطہ حاصل ہوا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلا واسطہ، کہ اس میں ماں باپ کا بھی دخل نہیں ہے اور نہ ہی کسی معلم کا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا سکھایا؟ اس کو رونا سکھایا، اور یہی ایک رونے کی صفت کی وجہ سے وہ اپنی تمام ضروریات کو حاصل کر لیتا ہے۔ یعنی بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے تو روتا ہے، تو اسے ماں کو پتہ چل جاتا ہے۔ سردی گرمی لگے تو معلوم ہو جاتا، تو رونے لگ جاتا ہے، ماں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ سردی کے لحاظ سے وہ کچھ زیادہ سردی لگ رہی ہے تو کپڑے زیادہ پہناتی ہے، اگر گرمی لگ رہی ہے تو معلوم کو خود ہی ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی اور بھی تکلیف پہنچے تو پھر وہ رونے لگ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے دلوں میں خاص الفت پیدا کر دی ہے، جس کی وجہ سے بچے کے رونے کی طرف ماں باپ جو ہے کھینچے چلے جاتے ہیں اور اس کی اس ضرورت کو پوری کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ واسطہ بنے گا، واسطہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو سکھا دیا۔ اس طریقے سے اس کی اور مزید ضروریات بڑھی، وہ بولنے لگ گیا، وہ سمجھنے لگ گیا، وہ ماں باپ کو پہچاننے لگ گیا کہ ہاں اب میرے رشتے میں یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میرے بہن بھائی ہے۔ اور پھر اس نے پہچان اور پھر مجھے کیا کہا جا رہا ہے، اس لیے فرمایا وجعلوا لكم السمع والابصار والافئدہ۔ تو سب سے پہلے سمع کا یعنی سننے کی طاقت کا قوت کا ذکر فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلا علم جو ہے اور سب سے زیادہ علم ہے وہ کیا ہے؟ کانوں ہی کے راستے سے انسان کو آتا ہے۔ شروع میں تو دیکھیں نا آنکھ بند ہوتی ہے، لیکن اگر پیدا ہوتے بچے کے سامنے اگر کوئی انہونا شور ہو جائے تو بچہ بھی چیختے ڈر کے اور رونے لگ جائے گا۔ تو جس قدر بھی کوئی انسان کو کوئی زندگی میں جو معلومات حاصل ہوتی ہیں، ان سے ہمیں سب سے زیادہ کون سی معلومات ہے جو کانوں سے سنی جاتی ہے؟ آنکھوں سے دیکھی ہوئی معلومات کم ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کانوں سے سنی ہوئی معلومات زیادہ ہیں۔ اور اس کے بعد سنی اور دیکھی ہوئی چیزوں کا ذکر آیا کہ سنی ہے اور دیکھی ہے، اس کے بعد دیکھی ہوئی جو معلومات ہے اس کا ذکر آیا۔ پھر افئدہ فرمایا، یعنی کہ تمہارے دل جو علم حاصل کرتے ہیں، حالانکہ سمجھ بوجھ اور جو ادراک ہے اس کا کیا مرکز ہے؟ وہ ہے دماغ، وہ سوچ سمجھ رکھتا ہے، لیکن قرآن کے جو اس ہے کہ اس نے دماغ کو تو ہے علم سیکھنے میں، لیکن اصل ہے علم و ادراک کا۔ اسی لیے حدیث میں بھی یہ دعا کی نا، یا مقلب قلبی ثبت قلبی علی طاعتک، تو قلب کا زیادہ اس میں ہے علم کو سیکھنے میں، تو جس میں قلب والافئدہ ذکر کر دیا۔
यहाँ पर समझने की जो कुव्वत है, सुनने, देखने और समझने की कुव्वतों का ज़िक्र किया। गोयाई का ज़िक्र नहीं किया गया, यानी ज़ुबान का ज़िक्र नहीं किया। क्योंकि बोलने को और नुत्क़ को इल्म दीन हासिल करने में, यानी वो शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि जो ज़ुबान है वो इल्म के इज़हार का ज़रिया है, जबकि कान जो है वो इल्म को हासिल करने का ज़रिया है। लेकिन अगर देखा जाए, जैसे इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि सम्अ के साथ नुत्क़ भी, यानी बोलना भी साथ ही आ गया। क्यों? क्योंकि जो शख्स सुनता है वो बोलेगा भी, और जो शख्स गूंगा है, बोलने पर कादिर नहीं, वो सुनता भी नहीं। तो इसीलिए अगर वो सुन रहा है तो वो बोलने पे भी उसी के ज़िम्न में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। और अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारे घरों को नहीं, क्या उन्होंने अब परिंदों को नहीं देखा कि वो आसमान की फ़िज़ा में अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं, उन्हें अल्लाह के सिवा कोई और थामे हुए नहीं है। यकीनन इसमें उन लोगों के लिए बड़ी निशानियाँ हैं जो ईमान रखते हैं। और इसने तुम्हारे लिए तुम्हारे घरों को सुकून की जगह बनाया, और तुम्हारे लिए मवेशियों की खालों से ऐसे घर बनाए जो तुम्हें सफर पर रवाना होते वक्त और किसी जगह ठहरते वक्त हल्के फुल्के महसूस होते हैं। और उनके ऊन, उनकी रुई और उनकी बालों से घरेलू सामान और ऐसी चीजें पैदा की जो एक मुद्दत तक तुम्हें फायदा पहुंचाती हैं। यहाँ पर अल्लाह ताला ने एक सिर्फ बयान की है घर की, बुयूत, बैत की जमा है, यानी ऐसा मकान जिसमें रात गुजारी जाए उसको बैत बैत कहते हैं। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इसकी तफसीर में जो चीज़ तुम्हारे सर से बुलंद हो और तुम पर साया करे वो छत, समा कहलाती है। और जो चीज़ तुम्हारे वजूद को अपने ऊपर उठाए वो ज़मीन है। और जो चीज़ चारों तरफ से तुम्हारा पर्दा करे वो दीवारें हैं, और जब ये सब चीज़ें मिल जाएँ तो वो बैत है, यानी साया करे, अपने ऊपर वजूद को उठा लेती है, यानी ज़मीन, हम जहाँ पर लेटते हैं बेपरवाह होकर, चारदीवारी यानी हमें प्रोटेक्शन होती है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर हमें घर देती हैं और इससे हम सुकून हासिल करें। अब यहाँ घर बनाने का असली मकसद क्या है? सुकून क़ल्बी, जिस्म को सुकून हो और क़ल्ब को सुकून हो। सकन फरमाया, ठीक है? कि असल मकसद क्या है? जिस्म और क़ल्ब का सुकून है। अब देखें, आदतन अगर हम देखा जाए, हम कहीं भी चले जाएँ, हम ये भी कहते हैं भई अब घर, अब सुकून तो अपना ही घर है। कहीं भी चले जाएँ हम, चाहे सैर-ओ-तफ़रीह के लिए चले जाएँ, कस्ब-ओ-माश के लिए चले जाएँ, किसी भी काम के लिए चले जाएँ, आखिरकार जब घर आते हैं तो मालूम है कि हमने अपने बिस्तर पर लेटना है, अपने तरीके से सोना है, और अपना पता है यहाँ पे हमें किसी चीज़ का कोई डर नहीं है, पर्दे का नहीं है कि भई पर्दा हमारा खराब होगा। बेफ़िक्र होके अपने घर में सुकून करते हैं और आराम करते हैं। हालाँकि घर में भी काम होते हैं, ज़रूरी नहीं कि घर के अंदर काम, घरों के काम के बावजूद हमें पता है कि हमारी वो जगह है जहाँ पे हम सुकून हासिल करते हैं। और फिर क्या है, सुकून असल में क्या है? क़ल्ब और दिमाग का सुकून होना है, और वो इंसान को अपने ही घर में हासिल होता है। आप कहीं भी जा रहे हैं, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए किसी रिश्तेदार के पास गए, उसके घर गए हैं और वहाँ पे आप आराम कर रहे हैं, सुकून कर रहे हैं, लेकिन वो आपका क़ल्बी और दिमागी सुकून आपको नहीं मिल रहा, जो आप बेफ़िक्री से अपने घर में सोते हैं और वो आराम करते हैं, ठीक है? और फिर वो घर जिनके अंदर वो सुकून का बाइस बनते हैं, जो सिर्फ़ अमारात नहीं है, मकानात नहीं है, मकान वो होता है कि जो इंसान को सुकून ना दे, वो घर मकान है। असल घर वो है जो इंसान को सुकून दे। और मस्नूई जो तकल्लुफ़ात में पड़ गए हैं, घर प्यारे से प्यारा हो, अच्छे से अच्छा हो, उसके घर में ये है तो मेरे घर में ये हो, ये वाला डेकोरेशन पीस और ये चीज़ तो वो चीज़, ऐसा इटालियन किचन हो और ये चीज़ सोने नहीं देती कि मैंने अपने घर को ऐसे-ऐसे डेकोरेट करना है। लेकिन असल डेकोरेशन क्या है? दिल की डेकोरेशन, कि अपने आप को, दिल को सँवार लें, दिल को और दिमागी सुकून अता हो, वही सबसे बड़ा घर है। फिर तो वो उससे उस घर से अच्छी अच्छी तो वो झोंपड़ी है, वो झुग्गी होगी जिसके रहने वाले जो है वो जिनके दिलों को कल्बी और दिमागी सुकून हासिल है कि वो रात को चैन की नींद लेते हैं। हिसाब-किताब में लगे रहे, हमारे उस्ताद जी फरमाते थे एक आदमी की 4 या 5 फैक्ट्रियाँ थी, ठीक है? और अब देखिए जिसकी 4-5 फैक्ट्रीज़ हैं तो अब वो उतने ही मुलाज़मीन, उतने ही उसके होंगे जो फैक्ट्री को मैनेज कर रहे हैं। फिर वो अकेला बैठा सबको देख रहा है और मैनेज कर रहा है, उसका हिसाब तो उसका हिसाब।
उस बंदे को रात भर नींद ही नहीं आती थी हिसाब किताब में, और उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने वो नहीं, तो अब वो पिल्स लेके जो है वो सोता था। और पिल्स भी काम करना छोड़ गई कि वो अब असर ही नहीं करती थी उसको नींद की दवाई। तो अब बताएं मुझे, अब आप के देखें कि जब सही नहीं ऐसी माल दौलत का क्या करना जो इंसान को एक आफियत वाली नींद, सुकून वाली नींद ना दे सके, और फिक्र और पैसे को जमा करना ये हाथ से चला जाएगा और ये हो जाएगा, ये तो ये वो तो सुकून नहीं है ना। अच्छा सा सुकून क्या है? ऐसा बिस्तर जहाँ पर सुकून की नींद है, बेफिक्री की नींद है, तो वो असल नेमत है। इसी तरीके से अज़दवाजी ज़िंदगी का भी असल मकसद क्या है कि सुकून हासिल किया जाए। इसीलिए कुरान के करीम की में जो चीज़ ज़िक्र की जाती है उसकी असल को बयान करता है कुरान, उसकी रूह को बयान करता है। घर को बयान करने की क्या ज़रूरत है कि क़ल्बी सुकून हो, दिमागी सुकून हो। इसी तरीके से अज़दवाजी ताल्लुकात के बारे में भी जब ज़िक्र आया तो क्या फरमाया, लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम सुकून हासिल करो उससे, इलैहा अज़दवाजी ज़िंदगी से, बीवी से। तो जब वहाँ पे सुकून ही ना हो, हर वक़्त की लड़ाई हो छोटी-छोटी बात पर, तो वो मियाँ-बीवी का रिश्ता भी क्या होगा जिससे घर में बेसुकूनी पैदा होगी। तो इस वजह से हमारे अंदर जो ज़ाहिरी ज़ेब-ओ-ज़ीनत है, उसको हम जमा कर रहे हैं और उसी की दौड़ है, और गैर जो रस्मी तकल्लुफ़ात हैं उसको ही सामने रख रहे हैं। एक-दूसरे के रहन-सहन को, पहनने-ओढ़ने को बस ये हम दूसरों की तरफ देखते हैं और अपने घर की हालात की तरफ, और जितना अल्लाह ने दिया उस पर राज़ी ना हो, यही वजह है कि इंसान जो है वो कमी कमी में रहता है और हमेशा बेचैन रहता है। इसलिए जो अल्लाह ने दिया उस पे राज़ी, और जो रख रहा है दुनिया में वो कभी ज़ाया नहीं होने देगा। हमें हमें ये यकीन होना चाहिए, जिस रब ने हमें जिस हाल में रखा और जो दिया अल्लाह का, उसको भी शुक्र अदा करें। तो अल्लाह फरमाते हैं, इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा नेमत अता फरमाऊँगा। ठीक है? आगे देखिए जी। और अल्लाह ही ने अपनी पैदा की हुई चीज़ों से तुम्हारे लिए साए पैदा किए, और पहाड़ों में तुम्हारे लिए पनाहगाह बनाई, और तुम्हारे लिए ऐसे लिबास पैदा किए जो तुम्हें गर्मी से बचाते हैं, और ऐसे लिबास जो तुम्हारी जंग में तुम्हें महफूज़ रखते हैं। इसी तरह वो अपनी नेमतों को तुम पर मुकम्मल करता है ताकि तुम फर्माबरदार बनो। तुम्हारे लिए साए पैदा किए, अल्लाह ने साए बनाए, यानी चीज़ों के साए मुराद हो सकते हैं, और किसके? 1 मिनट। 1 मिनट ठहरिएगा। ये आयत नंबर क्या थी हमारी? 70। हुँ। यहाँ पे अल्लाह ने फरमाया, तुम्हारे लिए मुख्तलिफ चीज़ों के साए अल्लाह ताला ने बनाए। अब साए की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? और साया भी बहुत बड़ी नेमत है, एक इंसान के अपने जिस्म का साया, और एक दूसरी चीज़ों को साया जिससे वो कुछ देर जो है वो अपने आप को जो राहत में पहुँचाता है। अगर बारिश हो रही है तो हम किसी चीज़ के साए में चले जाते हैं, अगर धूप है तो हम दरख़्त के साए में चले जाते हैं। तो इसको भी फ़ायदेमंद बनाना है। फिर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया?
अच्छा जी। पहले वो देखें जो मवेशियों की खालों से तुम बनाते हो, अब देखें वो जो खैमे बनाए जाते हैं वो किससे बनाए जाते हैं? लेदर से। और लेदर के बारे में मन जरूर अनआम कमा अफवाह और बारिहा। ठीक है, तो इस ऊन का इस्तेमाल जानते हुए बताया नहीं, बाल खाल और ऊन उसका इस्तेमाल मैंने हलाल करार दे दिया। फिर अल्लाह ने इसमें ये भी नहीं लगाई कि वो जो जानवर है वो ज़िबा किया है या नहीं है, मर्दार है न, या फिर वो कैद है। सब को यानी मुतलकन फरमा दिया कि इसका गोश्त हलाल है, यानी कोई हलाल है या हराम है, मुतलकन फरमा दिया कि इनकी खालों को दबागत देकर इस्तेमाल करना अल्लाह ताला ने हलाल करार दे दिया। क्योंकि बाल और ऊन पर इंसान जानवर की जो मौत है का है उस पे असर नहीं होता, और बगैर किसी सनद के अल्लाह ताला ने उसको हलाल और जायज़ करार दिया। जबकि खंज़ीर की जो खाल है उसकी तमाम अज़्ज़ा हर हाल में नजस हैं हमारे नज़दीक, और उससे हम किसी भी किस्म का फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते। फिर क्या फरमाया, सराबील तक़ीकुमुल हर्रा, यानी इंसान को जो कुर्ते हैं वो गर्मी से बचाते हैं। यहाँ पे सिर्फ गर्मी का ज़िक्र आया, हालाँकि कुर्ता जो है वो इंसान को गर्मी और सर्दी दोनों से बचाता है। अब सर्दी है तो सर्दी के कपड़े हम पहनते हैं तो सर्दी से बचाता है, गर्मी है तो फिर हल्के फुल्के कपड़े पहनते हैं वो हमें गर्मी से बचाते हैं। तो यहाँ पे हिकमत क्या है कि सिर्फ हर वक्त का जिक्र किया, गर्मी का जिक्र किया। तो इसका क्या जवाब है कि इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह और दूसरे मुफस्सिरीन ने क्या कहा है कि कुरान हकीम अरबी जुबान में आया है। इसके अभी मुखातिब कौन थे? अरब थे, अहलुल अरब थे। इसमें फिर अरब की जो आदात थी और ज़रूरियात थी उसी को देखते हुए उसमें ये ज़िक्र किया गया है, ठीक है? और आपको मालूम है कि जो अरब है वो एक गर्म मुल्क है, वहाँ पर बर्फ़बारी की तो तसव्वुर ही मुश्किल है कि सर्दी हो बहुत ज़्यादा और बर्फ़बारी हो। उसकी गर्मी से बचाव के लिए कि इसीलिए यहाँ पे ज़िक्र हो गया सिर्फ़ गर्मी से बचाव का। और यहाँ पर क्या फरमाया इस सूरत के शुरू में, लकुम फ़ीहा दिफ़्उन, यानी लिबास के ज़रिए सर्दी से बचने और गर्मी हासिल करने का ज़िक्र पहले किया यहाँ पे, ठीक है? इसलिए फिर पहले वहाँ पे ज़िक्र किया था दिफ़्उन, यानी सर्दी से बचाव के लिए, तो अब यहाँ पर क्या ज़िक्र कर दिया कि गर्मी दूर करने का ज़िक्र किया गया है। ऐसा लिबास जिससे गर्मी दूर हो। फिर भी अगर ये काफ़िर मुँह मोड़े रहें, तो ऐ पैगंबर तुम्हारी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ इतनी है कि वाज़ेह तौर पर पैगाम पहुँचा दो। ये लोग अल्लाह की नेमतों को पहचानते हैं, फिर भी उसका इनकार करते हैं, और उनमें से अक्सर लोग नाशुक्रे हैं। उस दिन को याद रखो जब हम हर एक उम्मत में से एक गवाह खड़ा करेंगे। फिर जिन लोगों ने कुफ़्र अपनाया था उन्हें उज़्र पेश करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, और ना उनसे ये फ़रमाइश की जाएगी कि वो तौबा करें। इससे मुराद क्या है? मिन कुल्ली उम्मतिन शहीदा, हर उम्मत के पैगंबर गवाही देंगे। किस-किस की गवाही देंगे? कि उन्होंने अपनी उम्मत के लोगों को हक़ का पैगाम पहुँचाया है और उन काफ़िरों ने इसे कबूल नहीं किया। और फिर फ़रमाइश की जाएगी कि वो तौबा करें, तो अब तौबा का दरवाज़ा तो मौत से पहले-पहले खुला रहेगा, और फिर उसके बाद तौबा कबूल नहीं होगी। इसलिए फ़रमाया कि उन्हें उज़्र पेश करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, और ना उनसे ये फ़रमाइश की जाएगी कि वो तौबा करें। और फिर जब ये ज़ालिम लोग जब ये ज़ालिम अज़ाब को आँखों से देख लेंगे, तो ना कि उनसे इस अज़ाब को हल्का किया जाएगा और ना उनको मोहलत दी जाएगी। और जिन लोगों ने अल्लाह के साथ शिर्क किया था, जब वो अपने घड़े हुए शरीकों को देखेंगे, तो कहेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, ये हैं हमारे बनाए हुए वो शरीक जिनको हम तुझे छोड़कर पुकारा करते थे। इस मौका पर वो घड़े हुए शरीक उन पर बात फेंक मारेंगे कि तुम बिल्कुल झूठे हो। यानी उन बुतों को भी इस मौके पर सामने लाया जाएगा कि जिनकी ये इबादत करते थे, और उनकी ये जो बेचारगी है वो सब पे वाज़ेह होगी, और वो उन शयातीन को भी लाया जाएगा जिनकी पैरवी करके वो इनको खुदा के साथ शरीक बनाते थे। अब क्या मुमकिन है? अल्लाह ताला की कुदरत से ऐन मुमकिन है कि अल्लाह ताला उन बुतों को ज़ुबान दे दें और वो अपने मुँह से ऐलान कह दें कि भई हम झूठे हैं, हम तो कोई रब नहीं है, तुमने ही हमें ये जो है अल्लाह का शरीक बनाया था। और दुनिया में बेजान होने की वज़ह से उन्हें तो पता ही नहीं था कि उनकी कौन इबादत कर रहा है। और ये भी मुमकिन है कि ये वो
شیاطین ان سے یہ بات کہہ کر اپنی بے تعلقی کا اظہار کر دیں کہ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ جو بت ہیں وہ بھی، یعنی وہ تو نہ سنتے ہیں نہ وہ کوئی کام کر سکتے، حرکت کر سکتے ہیں، اس لیے وہ بے تعلقی کا اظہار کر دیں گے، اور وہ اس دن اللہ کے سامنے فرمانبرداری کے بول بولنے لگیں گے، اور وہ بہتان وہ باندھا کرتے تھے اس کا انہیں کوئی سراغ نہیں ملے گا، یعنی اب کوئی ساری وہ کیا کہتے ہیں نا، آنکھوں کے سامنے جب دیکھ لیں گے تو حجت تمام ہو جائے گی، اللہ کی وحدانیت واضح ہو جائے گی، وَلِلَّهِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اس دن تو حکومت اللہ ہی کی ہوگی، تو پھر اب وہ کیا ہے کہ انہیں اپنا جو بہتان اللہ پر باندھا کرتے تھے کہ اللہ کا شریک ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن ان کو کوئی دلیل نہیں مل سکے گی، اور وہ کہیں بھی نہیں، یعنی کوئی جس جگہ سے نکلنا چاہیں گے تو کوئی ایسا راستہ نہیں ہوگا جہاں سے وہ نکل سکیں۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا تھا اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا تھا، ان کی عذاب پر ہم مزید عذاب کا اضافہ کرتے رہیں گے، کیونکہ وہ فساد مچایا کرتے تھے۔ اور وہ دن بھی یاد رکھو جب ہر امت میں ایک گواہ انہی میں سے کھڑا کریں گے، اور اے پیغمبر ہم تمہیں ان لوگوں کے خلاف گواہی دینے کے لیے لائیں گے، اور ہم نے تم پر یہ کتاب اتار دی ہے تاکہ وہ ہر بات کھول کھول کر بیان کر دے، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور خوشخبری کا سامان ہو۔ اس آیت میں دیکھیے قرآن کو وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کر دے، ٹھیک ہے۔ اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، توجہ سے اگر سن رہے ہیں تو، یہ نعمان، ہاں جی، ابھی دیکھیں، چلیے جی، یہ میرا آپ سے سوال ہے، چلیے جی، اب یہ دیکھیے یہاں پر آیا ہے کہ تبیاناً، قرآن کو فرمایا نزلنا علیک الکتاب، ہم نے تم پر کتاب میں کھلا بیان ہر چیز کا۔ اب دیکھیں قرآن پاک جو ہے وہ ہر چیز کا بیان فرما دیا، تو احادیث، ٹھیک ہے، اس میں دین کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ تو ذکر نہیں نا کیے گئے، معاشی علوم ہیں اور فنی علوم ہیں، اور اس کے علاوہ دوسرے مسائل دینی علوم بھی میں سے بھی زیادہ تر آپ دیکھیں وہ تو سارا کچھ تو قرآن میں نہیں نا ذکر کیا گیا، تو ہر چیز یہاں ذکر کی گئی کہ وہ بیان کرنے کے لیے بیان کر دیا ہے، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ ہمیں تو ہر چیز قرآن میں، ہم جو بھی چیز کا مسئلہ جاننا چاہیں ہم قرآن میں سے کھول کے تو نہیں نا دیکھ سکتے کہ معاشی مسائل ہیں، ہمارے فنی مسائل ہیں، سائنس کے لحاظ سے ہیں، ٹوٹلی ہر چیز کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، اللہ فرما رہے، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ جی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی تفسیر بیان کرنے کے لیے، مطلب آپ پہ قرآن پاک مطلب نازل ہوا تو انہوں نے احادیث کے ذریعے بھی اس کی تفسیر بتائی، تقریباً زندگی گزارنے کے سارے مسائل انہوں نے بتائے۔ اس کے بعد پھر آگے علماء نے بھی جو ہے وہ جو یہ جو سارے کئی مسائل ہیں علماء نے بھی تحقیق کی۔ جی جی، آپ نجمہ اسلم بول رہی ہیں؟ نہیں، اہل نمائی۔ چلیں، شاباش، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، یہی بات ہے تقریباً۔ دیکھیں قرآن کریم میں اصول تو تمام ذکر ہو گئے، اصولاً تو تمام مسائل موجود ہیں، ٹھیک ہے، اب اس اصول کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں وہ ان مسائل کو بیان کرتی ہیں۔ ایک تو یہ ہو گئی، میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا تھا، ہم نے جب تفسیر شروع کی تھی تو تفسیر کے آپ کو ماخذ بتائے تھے 6، تو قرآن کے بعد احادیث رسول، پھر تفصیلات میں اگر جائیں تو اجماع ہوگا، قیاس ہوگا، اس کے سپورٹ کیا جائے گا، ان کے ذریعے سے وہ مسائل حل کیے جائیں گے۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ جو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اجماع ہے، قیاس ہے، ان سے جو بھی مسائل نکالے جائیں گے وہ پھر کیا ہے، ایک حیثیت سے کس سے نکالے گئے ہیں، وہ قرآن ہی سے نکالے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ معلوم ہمیں ہوگا کہ بھئی جو بھی تبیاناً لکل شیء کا مطلب کیا ہوا کہ تمام چیزوں کا جو نچوڑ ہے، قیاس ہے، حدیث ہے، قیاس ہے، اجماع ہے، وہ سب کہاں سے حاصل ہو رہے ہیں؟ قرآن کریم سے ہی حاصل ہو رہے ہیں، یعنی قرآن سے ہی دلیل لی جاتی ہے، اسے قیاس سے لی جاتی ہے، اس کا مطلق غیر مطلق رکھ کے لی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے تقدیم و تاخیر کو لے کے، اس کا ناسخ منسوخ لے کر اس کی جو ہے وہ لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ چلیے جی، آج کا اتنا ہی سبق، اگلی آیات میں کچھ تھوڑی تفصیل ہے اور وہ تفصیل جاننا ضروری ہے، ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ تعالی وہ بیچ میں رہ جائے گی اگر شروع کریں گے ٹائم کے لحاظ سے، تو وہ انشاءاللہ ہم اگلا رکوع سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے۔
نہیں ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا ماشاء اللہ. جی جی چلیے جی ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر.